So hello guys, welcome to Network Beginner. And basically on today's video, this is videos about LSA types, OSPF LSA types, type 1 to type 5 and type 7. So I hope you are all like this video. So let's understand what the contents they will share through the router LSA to the neighbors. And after they will share, the routers store the router LSA or like LSA in where? In LSTB. Okay. So they will like all the routers in a specific area, they will receive the router LSA. Now they will also store in a LSTB. So they will run the SPF algorithm to run to know the shortest path from source to the destination. Got my point? And what informations they will carry inside that router LSA. They will carry about the subnet. They will carry about the information about the network. They will carry about the like prefixes. Okay, so there are router links. I mean, this type of link like router one connected to two links. Got my point? And router LSA carry the cost. This link will cost that much, and this link will cost that much. Like this and this. And the neighbors, about the neighbors ID, or we can say that non neighbors ID, the router ID. So the router ID, like I already configure all the routers. So the router one ID is router ID is 1.1.1.1. So they will carry router ID. This is the point to point topology. In case like not all the contents they will change, but in case if there is a topology broadcast domain topology, so on that case, regarding the net router ID, they will carry the DRIP, means designated router IP, and remaining all the information they will remain the same. Got my point? And one more thing important: the router LSA will not go outside the boundary of specific area, which means if router 1 share the router LSA to the neighbors and flooded, so it will receive the router 2 receive it and router 3 receive it. And like vice versa, if router 3 gave the router LSA, so router 1 and router 2, and router 2 will share, so router 3, router 1 and router 4 receive it, and router 4 will share, so router 3 will receive it. So this means the all the router LSA will remains inside that OSPF specific area 0. They will not go outside the area 0. And this is all about the router LSA, the LSA type 1. I already give the configuration and the description, so you can check there. This is the router for configuration. This is just a normal configuration. Got my point? So now let's check on a router 1. How can we check our router LSA? Okay. So just wait. We have to give the command show IP OSPF database. So here, as you can check, the router link states area 0. So it will be shown the router LSA type 1. Got my point? And regarding the it is showing the router second LSA type because of the Ethernet cable. Okay, because network type in OSPF, which automatically triggers the DR BDR election, and because of the Ethernet interface. सो टाइप 2 LSA के बारे में समझते हैं, नेटवर्क LSA. ठीक है, सो पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ. ये एक स्विच हो गया, राउटर्स ये अपने एक और सबनेट बना देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझा पाऊँ. ये पूरा एरिया 0 है, बट ये जो सबनेट है, ये सबनेट है 192.168.1.0/24 और ये सबनेट है .2024. 192 और 168 ये आप ऐड कर देना नेटवर्क पोर्शन. ठीक है, सो ये राउटर 1 हो गया, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4. प्लीज़ यार ड्राइंग को थोड़ा सा माफ़ करता, इतनी अच्छी नहीं है मेरी. सो सपोज करो इसमें से ये DR बन गया राउटर 2 और अपना जो राउटर 3 है वो बन गया BDR. ठीक है, अब ये जो टाइप 2 है नेटवर्क LSA क्या क्या कैरी करेंगे? जो नेटवर्क LSA है वो क्या क्या कैरी करेगा? एक तो खुद की राउटर ID,
भाई ये तो पता लगेगा किसी दूसरे राउटर को कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, नाम से तो पहचाना जाएगा। तो इन केस नोड्स के अंदर, राउटर्स के अंदर उसकी राउटर आईडी से तो वो पहचाना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या करेगा, वो लिस्ट ऑफ राउटर आईडीज, राउटर की आईडी जो होंगी ना उनकी लिस्ट कैरी करेगा। बट बट ये नहीं होगा कि इस सबनेट की भी कैरी करे, वो सिर्फ अपने सबनेट की कैरी करेगा, इस सबनेट की। ये ओनली खुद के सबनेट की जो लिस्ट होगी राउटर आईडीज की वो ही कैरी करेगा। इसकी जो सबनेट की लिस्ट होगी, जो इनका यहाँ पर जो डीआर कैरी करेगा, जो मीन्स जो टाइप 2 नेटवर्क एलएसए होगा, वो कैरी करेगा इसके 2.0 सबनेट की, ना कि ये वाला। तो बस ये मेन डिफरेंस था, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था। और यहाँ पर भी जैसे कोई लिख रखा है, देखो, लिस्ट ऑफ राउटर आईडी ऑफ ऑल राउटर्स ऑन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अब जैसे कि यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिखा हुआ है, अब ये ब्रॉडकास्ट हो गया ना, एक सबनेट में हो गया तो ब्रॉडकास्ट हो गया। दो केस में दो सिनेरियोज में जो डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है, एक तो है अपना ब्रॉडकास्ट, ठीक है, एक अपना है ब्रॉडकास्ट, और दूसरा क्या होता है, जो इधर चैनल होता है ना, बिकॉज नॉर्मली आजकल क्या होता है, इधरनेट केबल, सॉरी, इधरनेट केबल। सो ये दो टाइप हैं, दो की वजह से जैसे कि डीआर बीडीआर इलेक्शन होता है नॉर्मली। अभी आप जैसे कि कोई लैब्स भी क्रिएट करेंगे इवन ये किसी में भी, तो उसमें जैसे केबल से कनेक्ट करेंगे, किसी भी आप पॉइंट टू पॉइंट भी बना लेना, सपोज करो ये मैंने बना दिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट तो हो गए, बट इस केस में भी यहाँ पर भी डीआर बीडीआर इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी सेगमेंट पर भी, ठीक है। अब ये राउट पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस सेगमेंट पर भी क्या हो रहा है, डीआर और बीडीआर का इलेक्शन हो रहा है। तो रिमेंबर इट, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं मैंने, बिकॉज नॉर्मली बताते नहीं है। सो बेसिकली इतना ही था टाइप 2 एलएसए का, नेटवर्क एलएसए। देन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द समरी एलएसए, गॉट इट। पहले हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं, बिकॉज राउटर 1 एंड राउटर 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सपोज करो ये सिनेरियो है, एरिया 1, एरिया 1 के दोनों राउटर्स ए बी आर है, एरिया 0 के राउटर 1 एंड राउटर 2 दोनों ए बी आर है। राउटर 1 में ये टोपोलॉजी सेम, राउटर 2 में। सो यहाँ पर जैसे कि 1.0 नेटवर्क हमने कन्फिगर कर रखा है, सपोज कि राउटर 6 में ये 1.0/24 है, और यहाँ पर राउटर 4 के बाद में 2.0। सो राउटर 4 को कैसे पता लगेगा, हम राउटर 6 तक कैसे जा सकते हैं, राइट। ये होता है हमारा EBR के थ्रू, एरिया बॉर्डर राउटर, जो जनरेट करता है समरी एलएसए को, ठीक है। अब वही तीनों चीज़ हम समझते हैं समरी एलएसए के बारे में। पहले जैसे कि मैंने LSA 1 और LSA 2 बताया था। सपोज करो एक पॉइंट टू पॉइंट है ब्रॉडकास्ट, आप कोई भी समझ सकते हैं। जो राउटर 6 होगा राउटर 5 को, राउटर 5 राउटर 6 को, दोनों को LSA 1 और LSA 2 जनरेट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था LSA 1 में जो प्रीफिक्सेस कोस्ट नेबर्स के बारे में, जो उसके बारे में जनरेट कर देगा। देन राउटर जो LSA 2 होगा वो क्या जनरेट करेगा, राउटर्स की आईडी और जो उसके सबनेट की राउटर आईडी है वो जनरेट कर देगा। सपोज करो ये सारी डिटेल्स राउटर 1 के पास आ जाती हैं, कि मेरे पास ये नेटवर्क है, जो राउटर आईडी LSA 2 भी आ रहा है, LSA 1 भी आ रहा है, प्रीफिक्सेस के बारे में, कोस्ट के बारे में, नेबर्स के बारे में, जो सारी डिटेल्स थे वो LSA 1 और LSA 2 के जरिए राउटर 1 में आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, जो समरी LSA है वो क्या करेगा, जो EBR एरिया बॉर्डर राउटर ब्लॉक कर देगा LSA 1 और LSA 2 को। यहाँ पर राउटर 1 के पास LSA 1 और LSA 2 पहुँच रहा है, वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ट्रांसलेट इनटू, पहले तो ब्लॉक करेगा, देन उन्हीं को जो उनके पास LSA 1 और LSA 2 आया है उसको ट्रांसलेट करेगा किस में, LSA 3 में, ठीक है। LSA 3 में, समरी LSA में उसको ट्रांसलेट करेगा, उसकी कोस्ट को। सपोज करो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक, जैसे कि 190.168.1.0/24 पोस्ट 10 और विया राउटर 1। सपोज करो ये इसने जनरेट कर दिया समरी LSA, ये इसने जनरेट किया। अब ये राउटर 1 इसको सेंड करेगा राउटर 2 को, राउटर 2 रिसीव कर चुका है क्या, LSA 3 मीन्स समरी LSA, राउटर 2 ने रिसीव कर लिया। अब राउटर 2 इसके बारे में भी एज ऑल, इसके राउटर 2 के पास भी सेम मिला था,
LSA1 और LSA2, ठीक है, वाइस वर्सा कर देना। पहले हम इसके बारे में समझते हैं, जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला पार्ट 1.0/24 वाले बारे में। सो यहाँ पर इसने रिसीव किया। अब जो राउटर 2 होगा अपने एरिया 1 में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा LSA3। जनरेटेड तो EBR ही करेगा ना, कि एरिया 1 में इटसेल्फ भी, और राउटर 3 और राउटर के 4 के पास भी पहुंच जाए उसकी समराइजेशन इन्फो। सो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि तुम सेम, ये है इसकी कोस्ट, ये है, और वी किसके थ्रू जा सकते हो, राउटर 2। ये जो समरी LSA इसने LSA3 टाइप जनरेट किया, ये राउटर 3 के पास और राउटर 4 के पास पहुंच गए, ठीक है। सपोज करो अब राउटर 4 जाना चाहता है किस पर, 1.0। सपोज करो राउटर 6 पर ही, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो समरी LSA आया था इसके राउटिंग टेबल में, ठीक है, राउटिंग राउटर 4 में क्या आया था, एरिया 1 में समरी LSA आया था, किसने जनरेट करके भेजा था, राउटर 2 ने। उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, 1.0 तक आप पहुंच सकते हो, ये कोस्ट है, किसके जरिए पहुंच सकते हो, राउटर 2 के जरिए पहुंच सकते हो। अब ये क्या करेगा, राउटर 4 एस्फियर, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और हम ये भी कह सकते हैं डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन करेगा। रन कहाँ तक पहुंचने के लिए, राउटर 2 तक पहुंचने के लिए, EBR तक पहुंचने के लिए, बिकॉज ये पार्ट है एरिया 1 का भी, तो यहाँ तक पहुंचेगा। राउटर 2 पहुंचेगा ही, राउटर 4 का जो उसको पता लग जाएगा SPF एल्गोरिदम के जरिए कि राउटर 2 तक कैसे जा सकते हैं। सो तो वो राउटर 2 तक पहुंच जाएगा। अब उसके कहाँ जाना है, 1.0 तक। अब राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 के पास ऑलरेडी समरी LSA था, राउटर 1 ने भेजा था। सो राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 1 को भेज देगा। देन राउटर 1 क्या करेगा, राउटर 1 तो जानता ही है बिकॉज इसके पास तो अपने राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन है, तो राउटर 1 क्या कर देगा, राउटर 6 के पास पहुंच देगा। जस्ट ये होता है हमारा समरी LSA। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है तो मत भूलना। मैं एक बार फिर से, अगर आप दोहराना चाहते हो मैं दोहरा देता हूँ। जो LSA1 और LSA2 किसके पास है, राउटर 1 के पास। राउटर 1 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, बिकॉज LSA1 और LSA2 नेवर, नेवर एवर, बट कभी भी वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। दे नेवर एवर क्रॉस देयर बाउंड्री ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। सो क्या करेंगे, राउटर 1 क्या करेगा, LSA1 और LSA2 को ब्लॉक कर देगा। उन्हीं के बिहाफ पर LSA1 और LSA2 इसको मिल तो गए, ब्लॉक ही किए हैं बिकॉज ये दूसरे एरियाज में ना जा पाए, ब्लॉक कर दिया। तो राउटर 1 ऑन बिहाफ ऑफ LSA1 एंड LSA2, इट विल क्रिएट अ थर्ड टाइप ऑफ LSA विच विच कॉल्ड द समरी LSA। तो इसने समरी LSA क्रिएट किया। समरी LSA क्या कर दिया, एरिया 0 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो राउटर 2 के पास मिल गया। अब राउटर 2, सपोज करो ये राउटर 1 ने अगर राउटर 2 को भेज दिया कि अगर आप 1.0 तक जाना चाहते हो तो राउटर 1 के जरिए जा पाओगे। ये राउटर 2 को मिल गया। अब जो राउटर 2 होगा वो एरिया 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो कहेगा अगर आप 1.0 के जरिए जाना चाहते हो तो कॉस्ट इतनी है, और किसके जरिए जा सकते हो, राउटर 2 के जरिए, मेरे जरिए। तो इसके पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एरिया 1 को पता है 1.0 तक नेटवर्क तक हमें जाना है, तो हमें राउटर 2 को EBR तक पहुंचना होगा। और जो राउटर 2 होगा उसको पहले से पता है बिकॉज ऑफ ही ऑल लाइक राउटर 2 ऑल्सो रिसीव द समरी LSA फ्रॉम राउटर 1, so it will go to router 1, then router 1 already know the part to the about the router 6, then he will call the, अब ये राउटर 1 राउटर 6 से चला जाएगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा हम राउटर 4 से राउटर 6 टू राउटर 4 और राउटर 4 से राउटर 6 तक जा सकते हैं। प्लीज रिमेंबर इट, राउटर 1 मीन्स EBR always block the LSA1 and LSA2 on behalf of that LSAs, it will create the summary LSA. So that's it for today's topic. So let's understand about the ASPR summary LSA. Okay, means LSA type 4. So let's understand through a practical टोपोलॉजी के थ्रू समझते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये LSA1 LSA2 जनरेट करते हैं। LSA1 नॉर्मली जैसे कि एक एरिया के अंदर हर राउटर नेबर को शेयर करता है, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, राउटर 5 रीडिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ASPR बन चुका है, ठीक है। अब ये जो राउटर 5 है ये LSA टाइप भेज रहा है बिकॉज राउटर 5 पर LSA5 ही जनरेट हो रहा है। वो EBR तक भी जा रहा है बिकॉज जो राउटर 1 है वो एरिया 2 का भी हिस्सेदार है, इज ऑलरेडी इन एरिया 2। गोट माय पॉइंट। सो राउटर 1 को ये पता लग रहा है कि जो अपने OSPF डोमेन में एक ASPR है, यानी कि राउटर 5
एक ASPR है। सो राउटर 1 क्या करेगा, राउटर 1 LSA टाइप 4 जनरेट करेगा, टाइप 4, जिसे हम ASPR समरी LSA भी कहते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें राउटर 1 बताएगा, उसकी राउटर आईडी, यानी कि सपोज करो राउटर 5 की जो राउटर आईडी है वो है 1.1.1.1, और राउटर 5 है तो आप सपोज कर सकते हो 55555, ओके। राउटर आईडी, उसकी कोस्ट मेथड जो भी आप कहना चाहो कि राउटर 1 से राउटर 5 के लिए कितनी कोस्ट है, सपोज 10। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये राउटर LSA 4 टाइप में राउटर 1 जनरेट कर देगा और यहाँ से फ्लड कर देगा इसके एरिया में। एरिया 0 में वो जो LSA टाइप 4 है ये फ्लड हो गया, ठीक है। अब ये राउटर 2 के पास पहुंचा। इट विल लाइक द LSA 4 टाइप, इट विल रिसीव ऑन राउटर 2 द EBR। सो अब राउटर 2 है वो क्या करेगा, राउटर 2 इसको चेक करेगा कि ये अपना LSA 4 टाइप आया है, अपने पास ये राउटर आईडी है, ये मेट्रिक आया। पर राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 1 में भेजने के लिए ये कहेगा अगर आपको ASPR तक पहुंचना है तो किसके थ्रू जाना होगा, मेरे थ्रू जाना होगा। तो ये क्या करेगा, राउटर 2 होगा उसमें कोस्ट और ऐड कर देगा, सपोज 10 ऐड कर दिया, टोटल 20 हो गया। अब एरिया 1 को पता है अगर हमें ASPR तक जाना है मीन्स 5.5.5.5 इस राउटर पर जाना है, तो हमें राउटर 2 के जरिए यानी कि EBR के जरिए जाना होगा, बिकॉज इसने क्या किया था, LSA 4 टाइप 4 जनरेट किया था जो कि है ASPR समरी LSA। अब ये तो आप समझ गए LSA टाइप 4। बट अब भी एक क्वेश्चन है कि राउटर 1 को ये कैसे पता लगा कि राउटर 5 ASPR बन चुका है, हाउ इट विल रिसीव, हाउ इट विल बी पॉसिबल। सो उसके लिए क्या अपना काम आता है, LSA टाइप, गेस करो, 1, ये अपना यानी कि राउटर LSA। अब राउटर LSA में तो मैंने जैसे आपको बता रखा है प्रीफिक्सेस वगैरह, प्रीफिक्सेस जो इसके नेटवर्क से रिलेटेड है, अपने लिंक्स के बारे में ये बताता है। तो राउटर 1 को कैसे पता, राउटर LSA के मतलब LSA टाइप 1 जो इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, फ्लड किया था, तो इसको कैसे पता कि राउटर LSA में एक्चुअली देर इज अ ई बिट, एक ई बिट है जो चेंज होती है LSA टाइप 1 में राउटर LSA में। जैसे ही ये ई बिट यानी कि LSA टाइप 1 राउटर LSA राउटर 1 के पास पहुंचता है तो ये समझ जाता है कि ये जिसके थ्रू आए, जैसे कि इसके थ्रू आए, सपोज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द राउटर आईडी। सो इस राउटर आईडी में ये ई बिट चेंज हो चुका है, ई बिट चेंज हो चुका है। सो राउटर 1 विल अंडरस्टैंड नाउ, राउटर 5 विल बिकम द ASBR। क्या हो चुका है, राउटर 5 ASBR बन चुका है। वॉट माई पॉइंट। अब एरिया 2 में क्या राउटर 1 को बताने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज राउटर 5 ऑलरेडी फ्लडेड द LSA टाइप 1 विच वाज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय राउटर 4। राउटर 5 ने जो LSA टाइप 1 राउटर LSA फ्लड किया था ऑलरेडी राउटर 4 के पास है, उसने अपनी LST में ऑलरेडी स्टोर कर लिया है लिंक स्टेट डाटाबेस के अंदर कि वो ई बिट चेंज हो चुका है। तो ये SPF एल्गोरिदम करके डायरेक्टली राउटर 5 पे जाएगा, ना कि राउटर 1 से राउटर 5, ठीक है। So that's all about the LSA type 4, which was ASBR summary LSA. So let's start our today's topic about the what type 5 LSA, which was external LSA. So through this topology we can very easily understand. So इस टोपोलॉजी के थ्रू समझते हैं। सो हमारा जो LSA 5 है, टाइप 5 LSA एक्सटर्नल LSA, वो ASPR के ज़रिए जनरेट किया जाता है राउटर 4 के ज़रिए, बिकॉज इस टोपोलॉजी में राउटर 4 जो है वो हमारा क्या है, ASBR है। जैसे ही हम इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन देते हैं तो जो जो टाइप 5 LSA होगा वो जनरेट होगा और OSPF डोमेन में फ्लड हो जाएगा, फ्लड कर दिया जाएगा किसके थ्रू, राउटर 4 के थ्रू। बट वो इन नेटवर्क टाइप्स में स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया और नोट सो स्टब एरिया में वो जो टाइप होगा, जो टाइप 5 LSA वो नहीं जाएगा। याद रखने की चीज़ है किसमें, जो टाइप 5 LSA है वो हमारा स्टब एरिया,
टोटली स्टब एरिया और नॉट सो स्टब एरिया में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वो जैसे कि स्टब एरिया और टोटली स्टब एरिया और नॉट सो स्टब एरिया में नहीं जाएगा, बट जो और अपने जो ओएसपीएफ डोमेन है, बाकी अदर एरिया हैं, उनमें जो टाइप 5 एलएस से जा रहा है उसमें क्या क्या कंटेंट डाटा कर रहा है, वो कर रहा है नेटवर्क के प्रीफिक्सेस। सपोज ये EIGRP में नेटवर्क प्रीफिक्सेस और सबनेट हम कह सकते हैं। सो ये इसकी डिटेल लेके जा रहे हैं नेटवर्क प्रीफिक्सेस की टाइप 5 एलएसए में। उसकी एडवर्टाइजिंग राउटर जो उसको एडवर्टाइज कर रहा है, कौन कर रहा है, राउटर 4 कर रहा है। राउटर 4 की राउटर आईडी लेके जाएगा LSA5। उसकी मेट्रिक टाइप, आई थिंक देर इज E2 एंड E1, वो लेके जाएगा। फिर देर इज अ कोस्ट लेके जाएगा, रीच एक्सटर्नल डेस्टिनेशन तक कोस्ट होगी, कोस्ट लेके जाएगा। सो ये सारी चीजें हैं एक टाइप 5 LSA कैरी करता है और अपने OSPF डोमेन में इसको फ्लड कर देता है। बट स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया और नोट सो स्टबी एरिया में राउटर 5 LSA नहीं जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप 5 विच वी कॉल द what external LSA, and you can also read from my website or like from the latest like from the that particular post, like it's contain external prefixes like about the redistribution rip PIGRP BGP और flooded throughout the OSPF domain, flood कर दिया जाता है OSPF domain में। ठीक है, so that's it for the type 5 LSA. So today's topic is what? NSSA external LSA means nodes of stub area external LSA। अपने नॉर्मल जैसे कि हमने पिछले जो टाइप LSA समझे उसी तरीके से समझेंगे इस टोपोलॉजी के थ्रू। देन जैसे कि इस टोपोलॉजी को आप जानते हैं, अपना एरिया में 0 में 2 EBR है, राउटर 1 राउटर 2, जो कि कनेक्टेड है एरिया 2 से भी और ये एरिया 1 से भी। और अपना एक एरिया 2 में जो राउटर 4 है वो कनेक्ट है EIGRP से भी। और ये जो अपना एरिया 2 है ये हमने कन्फिगर कर रखा है क्या, नोड सोर्स स्टबी एरिया। ठीक है, देन हम जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो राउटर 4 होगा ASPR, ये नोड सोर्स स्टबी एरिया होने के कारण क्या करेगा, टाइप 7 LSA जनरेट करेगा। और जो उसमें कंटेंट्स होंगे जो जनरेट करेगा अपने डोमेन एरिया 2 में सेंड करने के लिए, जो फ्लड करेगा एरिया 2 में, उसमें क्या रहेंगे, नेटवर्क के प्रीफिसेस, राउटर आईडी जो एडवर्टाइज कर रहा है बिकॉज ASPR एडवर्टाइज कर रहा है, उसकी मेट्रिक, उसकी कोस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही टाइप 7 LSA, सपोज करो ये टाइप 7 है, ये पहुंचा राउटर 1 के पास। जैसे ही राउटर 1 के पास पहुंचेगा ये उसको लॉक कर देगा। क्या करेगा, लॉक, बिकॉज जो टाइप 7 LSA होता है वो सिर्फ नोड सो स्टबी एरिया के लिए ही होता है। इट्स ओनली एंड ओनली फॉर विच एरिया, नोड सो स्टबी एरिया। और यहाँ पर जो उसकी डिटेल्स थे वो तो पहुंच ही गए हैं, बट अब दूसरे एरियाज को भी तो जाना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होता है, जो टाइप 7 LSA है इसमें एक पी बिट होती है, पी बिट जो कि सेट की जाती है, और वो सेट की जाती है 1 पर। ये पी बिट 1 पर सेट होने के कारण EBR जो है, जो रिसीव करता है LSA7, उसको ये पता लग जाता है कि इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, LSA5 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो कंटेंट्स रहेंगे जो उसको शेयर करना वो तो सेम ही है, बट जो राउटर आईडी है वो किसके हो जाएगी, राउटर 1 की, बिकॉज ये क्या है, एडवर्टाइजिंग राउटर बन चुका है अब दूसरे एरिया तक पहुंचाने के लिए। और सेम जैसे वो यहाँ तक टाइप 5 LSA पहुंचेगा, ये भी उसमें क्या करेगा, जो ये भी एडवर्टाइजिंग राउटर बन गया, तो ये राउटर आईडी को अपनी एडवर्टाइजिंग राउटर खुद की जगह बदल के भेज देगा दूसरे एरियाज में। अगर ये पी बिट, सपोज करो यहाँ पर टाइप 7 जो LSA ASPR जनरेट कर रहे हैं, जो पी बिट है, अगर ये उसको सेट कर दे 0 पर, देन क्या होगा, देन क्या होगा, बट ये जो EBR है या फिर जो राउटर 1 है ये रिसीव कर रहा है LSA5, ये सॉरी नॉट LSA5, जो LSA7 रिसीव कर रहा है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट ही नहीं करेगा किस में, LSA5 में। तो दूसरे एरियाज को पता ही नहीं लगेगा। इसलिए व्हेन टाइप
type 7 LSA will be created by an ASBR. It will set to P bit 1. So the ABR will convert into LSA 5 and block that LSA 7 in the same area, means not so stubby area. So this is our topic. That's it about it. So this is all about OSPF LSA type video, and I hope you like all that video and my efforts. So please do share, subscribe, and like this video. And if you have any question or if you have any suggestion to that particular channel about video shorts, so please do a comment. And thank you all, and happy learning or happy labbing.